میں نے چچی کو جس حالت میں آتے دیکھا تھا چچی کو پتہ چل گیا تھا۔ چچی نے مجھے سمجھایا، میں آپ کی سگی چچی ہوں، تم اپنے گندے دماغ کو ٹھیک کر لو۔ اگلے دن میں صبح اٹھا اور ناشتہ کیا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں ٹی وی والے کمرے میں جا کر ٹی وی دیکھ کر بیٹھ گیا۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کوئی 2 گھنٹے بعد چچی اپنا کام ختم کر کے ٹی وی والے کمرے میں آئی۔ اس وقت کوئی 10:30 کا ٹائم تھا اور آ کر بولی، عدنان بیٹا یہ پیسے لو اور بازار سے جا کر دن کو پکانے کے لیے سبزی لے آؤ۔ اور مجھے پیسے دے کر جانے لگی تو دروازے کے پاس پہنچ کر دوبارہ بولی، گھر کی چابی کچن کے دروازے کے ساتھ کیل پر لٹکی ہوئی ہے، جاتے ہوئے لے جانا ہو سکتا ہے۔ جب تم واپس آؤ میں باتھ روم میں نہا رہی ہوں تو تم دروازہ خود ہی باہر سے کھول کر اندر آ جانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں وہاں سے اٹھا، چابی لی اور باہر کی طرف نکل گیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں، بازار ہمارے گھر سے کوئی تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ آنے اور جانے اور سبزی خریدنے میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگنے تھے، اور میں پیدل ہی چلنے کا سوچا اور ٹائم بھی گزر جانا تھا اور بازار کی طرف نکل گیا۔ میں گھر سے کوئی تھوڑی دور ہی آیا تھا کہ میرے پیچھے سے موٹر بائیک آئی اور میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے غور کیا تو وہ ہمارا ہمسایہ تھا، ندیم چچا۔ مجھے دیکھ کر رک گئے تھے اور مجھ سے بولے، عدنان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا چچا بازار جا رہا ہوں سبزی لینے۔ تو وہ آگے سے بولے، آؤ بیٹا بیٹھو، میں بھی بازار ہی جا رہا ہوں، میڈیکل سٹور سے دوائی لینی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم بازار چلے گئے۔ وہاں سے میں نے سبزی لی اور چچا نے بھی دوائی لی اور ہم کوئی تقریباً 30 منٹ میں ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے میرے گھر کے سامنے اتارا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میں اپنے دروازے پہ کھڑا اور گھنٹی دینے لگا تو مجھے یاد آیا میرے پاس چابی جو ہے، اور ویسے بھی چچی باتھ روم میں نہا رہی ہوں گی۔ میں نے سبزی کا تھیلا نیچے رکھا اور چابی سے دروازہ کھولا اور سبزی کا تھیلا اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو صحن میں مجھے موٹر بائیک کھڑی نظر آئی۔ میں نے غور کیا تو حیران ہوا، چچا کی موٹر بائیک تو یہ نہیں ہے اور وہ اس ٹائم گھر نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈیوٹی پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ شام کو 5 بجے آتے تھے، تو یہ کس کی موٹر بائیک ہے؟ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور سبزی والا تھیلا اٹھا کے کچن میں رکھا اور چابی بھی کیل کے ساتھ دوبارہ لٹکا دی اور کچن میں رکھی فریج میں سے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر ٹی وی والے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کچن سے نکل کر چچی کے کمرے جو کہ کچن کے ساتھ بنا ہوا تھا وہاں سے گزرا تو مجھے ان کے کمرے کے دروازے کے پاس سے عجیب سی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میں چونک گیا اور ایک سائڈ پہ ہٹ کر کھڑا ہو کر سوچنے لگا یہ کس قسم کی آوازیں ہیں۔ میں نے دیکھا دروازہ بھی بند ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھما کر کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو مایوس ہوا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ اندر کیسے دیکھوں کہ اندر سے کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں کمرے کی کھڑکی طرف لپکا، ہو سکتا ہے وہاں سے اندر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کھڑکی کے پاس دیکھا تو مجھے کھڑکی کے دوسرے کونے سے پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا نظر آیا۔ میں نے بہت ہی احتیاط سے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کی دفعہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس جگہ سے اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کے میں اپنے حواس کھو بیٹھ گیا، کیونکہ اندر کا منظر میرے لیے دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر میں نے دیکھا سامنے صوفے پہ چچی کا کزن ماموں کا بیٹا شوکت، جو کہ شیخو پورہ میں سرکاری اسکول کا استاد تھا، وہ صوفے پر بالکل برہنہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف تھا، لیکن منہ اوپر چھت کی طرف تھا اور آنکھیں بند تھی۔ میں یہ منظر کوئی 10 منٹ تک دیکھ رہا تھا اور یہ نظارہ دیکھ کر میرا برا حال تھا اور دماغ میں یہی خیال آ رہا تھا مجھے ہر وقت گندے کاموں سے باز آنے اور تمیز سکھانے اور چچا کی دھمکی لگا کر مجھے دبانے والی آج اپنے ہی گھر میں اپنے سگے کزن کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ مجھے اس وقت چچی پہ یہ سوچ کر غصہ بھی آ رہا تھا اور اندر کا نظارہ دیکھ کر مزہ بھی۔ یکدم میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے فوراً اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس کا کیمرہ آن کر کے اندر کا جو منظر تھا اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ اچانک چچی نے آنکھیں کھولی اور ان کی نظر سیدھی کھڑکی پر پڑی۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور رنگ پیلا زرد پڑ گیا اور منہ سے چیخ نکل گئی اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس دن گھر سے باہر بھاگ جانے کے بعد میں شام تک باہر ہی آوارہ گردی کرتا رہا اور دن کو ہوئے واقعے کے متعلق سوچتا رہا، اور میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان تیار کر لیا تھا۔ اور پھر شام کو گھر آ گیا، گھر کے دروازے پہ آ کر گھنٹی بجائی اور تھوڑی دیر بعد میرے کزن نے دروازہ کھولا اور میں گھر میں داخل ہوا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا اور فریش ہو کے چپکے سے ٹی وی والے کمرے میں آ کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اب چچی کا خوف نہیں تھا، میں ان کا سارا کھیل دیکھ چکا تھا اور مجھے پتا تھا اب چچی بھی میری کوئی بات کسی سے نہیں کرنے والی، اس لیے میں اس لحاظ سے پورا مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کزن نے آ کر مجھے بلایا کہ آ کر کھانا کھا لو، سب انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور کھانے والے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چچی نے 4 پائیاں لگا دی تھی۔ میں وہاں اپنی 4 پائی پہ لیٹ گیا اور پتا نہیں کب آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔
आंख तब खुली जब मेरा कजन मुझे सुबह नाश्ते के लिए उठा रहा था। मैं उठा और नीचे बाथरूम में जाके घुस गया और नहा धो के बाहर निकला और सीधा आकर नाश्ते पे बैठ गया। सब हंसमे मामूल नाश्ता कर रहे थे। चची की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। मेरी नजर मिलते ही उसने फौरन नजरें नीचे कर ली और नाश्ता करने लगी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि अदनान बेटा अब तो तेरा काम होकर रहेगा। चचा ने नाश्ता खत्म किया और बच्चों से बोले चलो बच्चों तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, और चचा अपने कमरे में चले गए और दादी भी अपने कमरे में चली गई। चची बर्तन उठाने लगी। मैं भी जल्दी से नाश्ता खत्म किया और टीवी वाले कमरे में टीवी लगा कर बैठ गया। मैं अब सोच रहा था कि चची किचन का काम खत्म करके घर की सफाई करेगी और वो टीवी वाले कमरे में भी आएगी। मैं इस कश्मकश में था कि चची से बात कैसे शुरू की जाए और साथ ही चची के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा चची किचन से निकली और सहन में सफाई करने लगी और फिर उसने बाकी सब कमरों की सफाई भी कर ली। आखिर में वो टीवी वाले कमरे की सफाई करती थी। मैंने देखा चची ने जब बाकी कमरों की सफाई खत्म कर ली तो वो सीधी फिर अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान हुआ चची ने टीवी वाले कमरे की सफाई क्यों नहीं की, और फिर मुझे ख्याल आया चची जरूर कल वाली बात की वजह से मुझसे सामना नहीं करना चाहती होंगी और इसके दिल में खौफ भी होगा कि अदनान ने अगर कल वाली बात का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। और मैं अपनी जगह चची की कल वाली हरकत देखने के बावजूद हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। फिर मैं वहाँ पे बैठकर टीवी देखता रहा और दिन के 11 बज गए और मैं टीवी वाले कमरे में बैठकर अपना पूरा प्लान बना चुका था। मैंने हिम्मत की और चची के कमरे की तरफ चल पड़ा और उनके दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं 2 मिनट तक इंतजार करता रहा लेकिन कोई अंदर से आवाज नहीं आई। फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो दरवाजा खुल गया। मैंने आराम से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा चची अपने बेड पे बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उनका रंग पीला जर्द हो गया और बहुत ही आहिस्ता और कांपती आवाज में मेरे कानों में आई, क्या काम है? मैं आराम से चलते हुए बेड के दूसरे कोने पे बैठ गया और आहिस्ता से कहा, मुझे आपसे बात करनी थी। चची बेड पे बैठे आगे को बढ़ी और मेरे बिल्कुल नजदीक आकर मेरे घुटने को हाथ लगाकर सिसकियां लेने लगी और कहने लगी, अदनान मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। खुदा के लिए किसी को नहीं बताना, अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने हिम्मत करके आगे से कहा, चची आपने ये काम क्यों किया? आपको अपने बच्चों या घर में किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं था। वो और रोने लगी और कहने लगी, अदनान बेटा मैं बह गई थी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आगे से दोबारा ये काम कभी नहीं करूंगी। मैंने फिर कहा, चची अगर मेरी जगह चचा होते और आपको ये हरकत करते देख लेते तो फिर आपका क्या हाल होना था, ये आपने सोचा है? चची ने घुटने पकड़ लिए और कहा, अदनान अब तक उनको नहीं पता और ना ही उन्होंने देखा है और खुदा के लिए तुम भी ना बताओ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी बातें राज में रखूंगी और तुम मेरी। चची मैंने कौन सा गलत काम किया है जो आप मेरी बातें राज में रखोगी? चची ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली कि तुम जो ये अपने नफ्स के साथ खेल खेलते हो और मुझे चुपके से देखते हो ये गलत बात नहीं है तो और क्या है? चची दोबारा अपनी जगह पे जाकर टांगे लंबी करके बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं अपनी जगह से उठा और चची वाली साइड पे जाकर उनकी टांगों के पास जाकर बैठ गया और उनके जिस्म को छूने लगा। चची मेरी ये हरकत देख के उछल पड़ी और मेरे मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, शर्म नहीं आती? तुम अपनी सगी चची के साथ ये बेहुदा हरकत कर रहे हो और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं अपने कजन के साथ गलत काम कर रही थी? चची के थप्पड़ मारने पे मेरा दिमाग घूम गया और मुझे शदीद गुस्सा आ गया और मैं वहाँ से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा और दरवाजे पे पहुंचकर मेरे दिमाग में ख्याल आया, चची को अभी तक ये पता ही नहीं कि मेरे पास उनके काले करतूत की वीडियो बनी पड़ी है। मैं कमरे से बाहर निकला और साथ वाले कमरे में पड़ा हुआ मेरा मोबाइल जो कि मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था लेने चला गया और मेरा दिमाग बहुत तेजी के साथ काम कर रहा था। मुझे मेरे दिल से आवाज आई, अदनान बेटा गुस्से से काम नहीं, होश से काम लो, नहीं तो ये मजे कभी भी नहीं चख पाओगे। मेरे साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ और अपना मोबाइल उठाया और दोबारा चची की तरफ कमरे में दाखिल हुआ। इस दफा मैंने कोई दस्तक नहीं दी और अंदर आकर सीधा उनके पास जाकर बैठ गया। वो थोड़ा हटकर बैठ गई। मैंने मोबाइल पे वीडियो लगाई और मोबाइल की स्क्रीन चची के सामने की। चची की नजर जब मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी, जब वीडियो देखी तो उसके चेहरे का रंग पीला जर्द हो गया और वो वीडियो भी देख रही थी और कांप भी रही थी। मैंने फौरन मेरे हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश की जो कि मुझे पहले ही इल्म था। मैंने फौरन अपना मुंह हाथ खींच लिया और बेड से उठकर साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और चची का मुंह देखने लगा। चची ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने ये वीडियो कैसे बनाई? मैंने कहा, चची आप क्या समझती हो, मैं इस टाइम ही आया था जब आपने मुझे देख लिया था। नहीं, मैंने आपका मुकम्मल शो देखा था और इस टाइम ही आपकी वीडियो भी बनाई थी। और मैंने कहा, अब क्या ख्याल है मेरी प्यारी चची जान? मेरे पास तो आपका पक्का सबूत है। अब बताओ कैसा वो मंजर होगा जब ये वीडियो चचा देखेंगे और फिर बाद में आपके साथ जो होगा ये तो आपने मुझे थप्पड़ मारते हुए भी नहीं सोचा। चची फौरन बेड से उठी और सीधे मेरे पाँव में आकर बैठ गई और रोने लगी। अदनान मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे हाथ उठाया, खुदा के लिए ये वीडियो खत्म कर दो, खुदा के लिए किसी को ना दिखाना, मैं तुम्हारे आगे
हाथ जोड़ती हूँ, मैं जिंदगी में दोबारा ये काम नहीं करूँगी। खुदा के लिए अदनान, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो। ये वीडियो अपने मोबाइल से खत्म कर दो। अगर ये किसी ने देख ली तो क़यामत आ जाएगी। और साथ में पैरों में हाथ रख के रोई जा रही थी। मैंने आगे से जवाब दिया, चच्ची इस वीडियो की वजह से ही तुम मेरे पैरों में बैठी माफी मांग रही हो। अगर ये वीडियो ना होती तो आज जो तुमने मेरे ऊपर हाथ ना उठाया होता और मुझे सबूत का ना पूछा होता। चची बोली, अदनान मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी और अपने आप पर कंट्रोल ना रख सकी थी, इसलिए अपने प्यास बुझाने के लिए ये गलत काम किया। तुम भी मर्द हो, तुम भी तो अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपने हाथ से तस्कीन लेते हो और तुमने भी किसी औरत के साथ अपने जिस्म की तस्कीन दी होगी। मैंने चची से कहा, हाँ ये सच है कि मैं अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपने हाथ से तस्कीन लेता हूँ, लेकिन ये भी सच है आज तक मैंने किसी औरत के साथ ये काम नहीं किया है। लेकिन आप तो शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, कल को ये बात किसी को पता चलेगी तो आपकी अपनी और घर वालों की इज्जत का क्या हाल होगा और आपके बच्चों का क्या बनेगा, ये आपने कभी सोचा है? और दूसरा, आप जो ये कह रही हैं कि मैं बहक गई थी ये गलत काम करने के लिए, आप जब अपने कजन के साथ ये काम कर रही थी मैंने आपकी सब बातें सुनी। आपकी बातों से साफ पता चल रहा था आप ये काम पहली दफा नहीं काफी टाइम से कर रही हैं और काफी लोगों से कर चुकी हैं। क्या ये सच नहीं है? चची ने रोना बंद कर दिया था। फिर वो बोली, अदनान तुमने सब कुछ देख भी लिया है और सुन भी लिया है। तुमको पता है मैं अभी जवान हूँ। जब तुम्हारे चचा फोत हुए तो मेरी उम्र उस टाइम 32 साल थी। तुम्हारे चचा के फोत होने के 2 साल बाद मैं अकेली बर्दाश्त करती रही और सहती रही, लेकिन तुम खुद सोचो मैं एक जवान औरत हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, एहसासात हैं। मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया और बाहर मुंह मार के बदनामी से बचने के लिए अपने घर में ही अपने जिस्म की तस्कीन के लिए अपने कजन के साथ ताल्लुक बनाया था। फिर चची थोड़ी देर खामोश रही और कोई 2 मिनट की खामोशी के बाद बोली, अदनान तुम मेरा सब कुछ देख भी चुके हो और जान भी चुके हो, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम से सब कुछ अपने चचा को दिखाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो और या और हल भी है। और फिर वो खामोश हो गई। मैं ताज्जुब में था, दूसरा हल कौन सा है? मैंने खामोशी को तोड़ते हुए चची से सवालिया नजरों से पूछा, आप दूसरे किस हल की बात कर रही हैं? चची ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें नीचे करके बोली, अगर तुम मेरा ये राज किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हारे जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तुम्हारी काफी मदद कर सकती हूँ। मुझे पता चल चुका था चची अब काफी हद तक मेरे कंट्रोल में आ चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्दानगी में रहना चाहता था, इसलिए मैंने फिर सवाल किया, आप मेरे कैसे और किस तरह मदद कर सकती हैं? चची ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, तुम बच्चे ना बनो। मैंने कहा, आपको पता है मैंने आज तक किसी औरत के साथ इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे मेरी मदद कर सकती हैं? चची ने लंबी सी सांस ली और बोली, जैसे तुम अपने हाथ से मजे करते हो और मैं औरत के हाथ से तुम्हारी वो तस्कीन पूरी कर सकती हूँ, और ये इस सूरत में भी हो सकता है जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे राज को राज रखोगे और मेरी वीडियो भी किसी को नहीं दिखाओगे। आपकी ऑफर बुरी नहीं है, लेकिन इसमें मजा तभी है जब इस पे मुकम्मल अमल भी हो। ये डील पक्की है या सिर्फ जान छुड़वाने के लिए दाना फेंका जा रहा है? इस्लामाबाद में तो इतनी ज्यादा मॉडर्न और फैशन वाली लड़कियां हैं। मैं आगे से कहा, आपकी बात सच है कि इस्लामाबाद में फैशन और मॉडर्न लड़कियों की रेल पेल है, लेकिन वहाँ भी इतनी जल्दी हाथ में नहीं आती हैं और वहाँ पर अब्बू का डर भी है। वक्त साथ रहता है, इसलिए आज तक ना कोई चांस मिला और ना हिम्मत हुई। कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए